اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کی متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے وارثین کے مابین ترکہ کی تقسیم کا، اور اگر قرض کی مقدار ترکہ سے زائد ہے تو قرض داروں کے مابین ترکہ کی تقسیم کا طریقہ بیان کریں گے۔ اچھی بات ہے۔ اب مان لیجئے اب تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں یہ تو پتہ چل گیا کہ میت کا مال کل کتنے حصوں میں تقسیم ہوگا کہ بنا کسی کسر کے وارثین کو ان کا حصہ مل جائے۔ یہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے۔ لیکن اگر اتنا پوچھنے کے ساتھ ساتھ سائل آپ سے یہ پوچھ لے کہ مرحوم کا ترکہ کتنے حصوں میں منقسم ہوگا اور مرحوم نے ترکہ یہ چھوڑا ہے، اس ترکے میں کس کا کتنا کتنا حصہ ہوگا، تب آپ کے لیے پھر دقت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس عدد سے آپ نے مسئلے کی تصحیح کی ہے اس عدد پر ترکہ کی تقسیم کیسے کریں گے، یا قرض خواہ جو لوگ ہیں ان کے قرضے کی مقدار اگر ترکے سے زیادہ ہے تو ظاہر ہے پھر ترکہ کو قرض داروں کے بیچ تقسیم کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے جو آیا وہ اپنا سب قرضہ لے گیا اور باقی قرض خواہ بالکل لیا محروم ہو گئے۔ نہیں، قرض داروں کو بھی اسی تناسب سے قرضہ کم لینا ہوگا جس تناسب سے ترکہ میں کمی ہے۔ اچھی بات ہے۔ تو اب اسی بات کا بیان آپ کو کرنا ہے، سمجھنا ہے آج کہ کیسے ترکہ بٹے گا وارثین کے بیچ یا قرض خواہوں کے بیچ۔ ابھی تک جو آپ نے مسئلہ بنائے تھے نا، ان مسئلوں میں لائن کے اوپر میت کی جو لائن کھینچی جاتی ہے اس کے دائیں سائیڈ میں میت کا نام آپ اوپر لکھیں، اب اس کے بعد تصحیح لکھیں، جس عدد سے مسئلے کی تصحیح ہوئی ہے اس عدد کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اوپر ہی لائن کے اوپر بائیں سائیڈ میں ترکہ جتنا ہے میت کا اس کی مقدار لکھ دیں۔ اچھی بات ہے۔ اب جب تصحیح دائیں طرف آپ نے لکھ دیا اور ترکہ بائیں طرف لکھ دیا، اب آپ کو غور کرنا ہے کہ تصحیح اور ترکے کے مابین کون سی نسبت ہے۔ مسئلہ جس عدد سے آپ نے بنایا اس کے درمیان اور ترکہ کی جو مقدار بائیں سائیڈ میں لکھی ہوئی ہے میت کے، اس میں کون سی نسبت ہے، وہی نسبت جو عددوں کے درمیان ہوتی ہے جس کو آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یہاں پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نسبت ملے گی۔ تو اب اگر بالفرض تصحیح اور ترکہ کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تصحیح ہے اتنے ہی حصے میں وہ ترکہ کو بانٹ دیجئے، کام ختم ہو جائے گا۔ مثلا
मरने वाली मरती है और वो अपने पीछे शौहर छोड़ती है, माँ और बाप छोड़ती है ना। तो अब यहाँ पर चूंकि ज़ौजा की औलाद नहीं है, इसलिए ज़ौज को निस्फ मिलेगा, और माँ बाप छोड़े हैं, इसलिए ये वो सूरत है जिस सूरत में माँ को 16 से माँ बकिया बादा फर्ज अहद ज़ौजैन मिलता है, यही सूरत है। तो माँ को 16 से माँ बकिया मिलेगा, और बाप यहाँ पर आप समझिए कि असबे महज है, क्योंकि मैयत की औलाद न बेटा है न बेटी है। तो अब यहाँ पर निस्फ टकरा रहा है सुलुस से, तो उसूल के मुताबिक मसला बनेगा 6 से। ज़ौज को उसका आधा 3 मिल जाएगा, है ना, और उसके बाद 3 मिलने के बाद जो बकिया 3 बचा, 16 से माँ बकिया माँ को मिल जाएगा, यानी 1। 3 देने के बाद जो 3 बचा उसमें 1 बाकी, 16 से माँ बकिया, ये माँ को मिल जाएगा। बाप यहाँ साहिब फर्ज नहीं है बल्कि असबे महज है, तो असाबे फराइज को देने के बाद जो 2 हिस्से रह जा रहे हैं वो 2 हिस्सा बाप को असूबत की बुनियाद पर मिल जाएगा। अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर तसहीह की भी ज़रूरत नहीं है, मसला जिस अदद से बना कसर किसी पर वाक़े नहीं हो रहा है, तो 6 ही तसहीह भी हो गई। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मरने वाली औरत ने अपना तरका भी 6 दीनार छोड़ा है, तो अब तसहीह यानी 6 में और तरका यानी 6 दीनार में ये मुमासलत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 3 दीनार ज़ौज को मिल जाएगा, 1 दीनार माँ को मिल जाएगा, 2 दीनार बाप को मिल जाएंगे। एक दूसरी मिसाल भी देख लें कि मसलन मरने वाली या मरने वाला ये मरता है और 2 बेटी छोड़ता है, माँ बाप छोड़ता है, तो 2 बेटियां हैं मैयत की, सुलसान इनको मिलेगा, माँ को सुदुस यहाँ पर मिलेगा, बाप यहाँ फ़र्ज तासीब है लेकिन बचेगा ही नहीं, तो फ़र्ज ही पर इसको इक्तफ़ा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर है क्या, सुलसान और सुदुस इकट्ठा हो रहे हैं। तो अब मसला कैसे बनेगा, 6 से बनेगा, क्योंकि सुदुस छोटा हिस्सा है। 6 से जब आप मसला बनाएंगे तो सुलसान उसमें 2 बनात को 4 दे देंगे और 1 सुदुस माँ को दे देंगे, और बाकी जो बच रहा है 1 सुदुस ये बाप को दे देंगे। बाप को दे दिया सुदुस, और बचा कुछ है नहीं, फ़र्ज मात तासीब की हालत है यहाँ, लेकिन बचा तो है नहीं कि मिले, तो अब 1 ही पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा। अब बिलफ़र्ज मरने वाले या मरने वाली ने कुल तरका भी 6 दीनार छोड़े हैं, तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है। अब आइए दूसरी चीज़ की तरफ कि अगर तरका और तसहीह में तबायुन हो तब कैसे बांटेंगे तरका को। तो कहते हैं कि उसूल उसका ये है कि हर फरीक को या हर वारिस को जो हिस्सा मिला है तसहीह से, उसको आप कुल तरका में ज़रब दे दीजिए और फिर हासिल ज़रब को कुल पर, कुल तसहीह पर तकसीम कर दीजिए, हिस्सा निकल जाएगा। मसलन आप देखें कि मरने वाला मरता है, अपने पीछे 2 बेटियां छोड़ता है, बाप छोड़ता है और माँ छोड़ता है। तो जाहिर है बेटियों का यहाँ सुलुसान है, बाप का सुदुस है, फ़र्ज मात तासीब की हालत है लेकिन बच नहीं रहा है यहाँ पर, और का सुदुस है क्योंकि 2 बेटियां मौजूद हैं, तो सुदुस मिलेगा। अब 6 से मसले की तसहीह हो गई और तरका 6 नहीं बल्कि 7 दीनार छोड़े उसने, 7 दीनार छोड़े हैं तरका। आप इसको रुपया भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि किताब में दीनार का तज़किरा है वही समझ लीजिए, उसूल सेम रहेगा, आप रुपया से भी बना सकते हैं। तो तरका उसने 7 दीनार छोड़े। अब हमने तसहीह यानी 6 और तरका यानी 7 में निस्बत देखी, तो हमको क्या मिला,
ये तबायुन की निस्बत मिली। तो अब हम क्या करेंगे, हर वारिस के हिस्से को 7 में ज़रब दे देंगे और 7 में ज़रब देने के बाद उसको 6 पर तकसीम कर देंगे। तो अब 6 पर तकसीम करने के बाद जो हासिल तकसीम होगा वो उस वारिस का हिस्सा होगा। मसलन इस सूरत में मसला 6 से बनाया गया और बेटी को सुलसान मिला 4, तो एक बेटी को कितना मिलेगा, 2। अच्छी बात है। तो अब 2 जब एक बेटी को मिला तो आप कुल तरका 7 में इसको ज़रब दे दिए तो 2 साते 14 हो गए और 2 साते 14 हो गए। तो अब आप 14 को ये तकसीम कर देंगे किस पर, 6 पर। 6 से जो मसला बनाया आपने वो 6 पर आप 14 को तकसीम कर देंगे। अच्छी बात है। 6 पर जब 14 को आप तकसीम करेंगे तो देखा आपको कितना मिलेगा हिस्सा। फिर से एक बार आप सुन लें कि लड़की को कितना मिला है, 2 मिला है। 7 से तकसीम किया, नहीं 7 में ज़रब दिया यानी जो तरका है उसमें, तो कितना हो गया, 14 हो गए। अब 14 को आप 6 से तकसीम करेंगे, 14 को 6 से, तो 2 हिस्से पड़े, 6 दूनी 12। अब फिर 2 को 6 से तकसीम करेंगे तो हर हिस्सा 6 जगह बटेगा। तो अब हासिले किस्मत क्या होगा, 2 सही और फिर 1/3, 2 बटे तकसीम किया, 6 से तकसीम किया तो कितना हुआ हासिले तक किस्मत, 2 सही 1/3 है ना। और 7 को 6 से तकसीम किया तो हासिले किस्मत 1/6 हुआ। अब यही उस वारिस का हिस्सा होगा, यानी 2 में से 2, ये लड़की को जो 2 मिला है तो उसका हिस्सा 7 दीनार में से 2 दीनार 1/3 दीनार, और माँ बाप को 1 मिला है तो 1 साते 7 को जब 6 से तकसीम किया 1 सही 1/6 दीनार हुआ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब और आप देखें, अब आप असल इबारत देख लें, यहाँ पर समझ में आ जाएगी पूरी बात इंशाअल्लाह। फसलुन फ़ी क़िस्मति तरकात बैनल वरासत वल गुरमा, ये फसल है तरकात की तकसीम के बयान में वारिसीन और कर्ज़खाहों के बीच। वारिसीन के माबैन तकसीम कब होती है, आप पढ़ चुके हैं कि जब कर्ज़ा अदा कर लिया जाए और मैयत की वसीयत पूरी की जाए तो उसके बाद न तरकात की तकसीम होती है। तो अब मान लीजिए कर्ज़खाह हैं और कर्ज़खाह अगर इतने हों, ये कर्ज़ अगर इतना हो कि कर्ज़ा अदा करने के बाद तरका बच जाए तभी न तकसीम होगी वारिसीन के बीच, और अगर कम हो तो वारिसीन के बीच तो तकसीम नहीं होगी बल्कि कर्ज़खाहों के बीच तकसीम होगी, क्योंकि हस्बे मनशा कर्ज़ा तो है नहीं, कम है तरका उससे। कहते हैं कि जब तसहीह और तरका के माबैन मुबायनत हो, तसहीह और तरका के दरमियान मुबायनत हो। अभी मिसाल मैंने आपके सामने पेश की। तो तसहीह से मिले हुए हर वारिस के हिस्से को आप पूरे तरके में ज़रब दे देंगे, फिर मबलग को तसहीह पर तफसील कर देंगे। उसकी मिसाल क्या है, 2 बेटी माँ बाप और तरका कितना है, 7 दीनार। और तसहीह और तरका में मुआफ़क़त हो तो तसहीह से मिले हुए हर वारिस के हिस्से को आप तरके के वक़्फ़ में ज़रब देंगे, फिर हासिल ज़रब को ये तसहीह के वफ़्क़ पर तकसीम करेंगे। तो अब जब जो हासिल किस्मत होगा वो उस वारिस का हिस्सा होगा।
कहते हैं ये बात तो हर फर्द के हिस्से की मार्फत के लिए हो गई, लेकिन हर फरीक का हिस्सा कैसे पता चलेगा? तो हर फरीक को असले मसला से जो हिस्सा मिला है फरीक को, उसको आप तरका के वक्त में ज़रब दे देंगे, फिर मबलग को मसला के वक्त पर बांट देंगे। ये कब होगा? जब तरका और मसला में मुआफ़क़त हो। और अगर मुबायनत हो, जैसे फदरिब फी कुल्ली तरका, तो अब ऐसी सूरत में तसहीह से जो फरीक को हिस्सा मिला है उसको कुल तरका में ज़रब दे देंगे, फिर जो हासिल ज़रब आएगा उसको पूरे मसले पर तकसीम कर देंगे, तो जो खारिज किस्मत होगा उस फरीक का हिस्सा होगा, दोनों सूरतों में, यानी तवाफुक की सूरत में और तबायुन की सूरत में। अब रह गया कर्ज की अदायगी का मसला। तो कर्जदारों का कोई हिस्सा तो मुकर्रर नहीं है, जितना दिया है उन्होंने कर्जा उतने उसका हिस्सा है। तो अब मसला यहाँ तो बनाना नहीं है। मसला कैसे बनेगा कि हर कर्ज खाह का कर्जा दैनो कुल्ले गरीब, ये अमल में हर वारिस के हिस्से की तरह होगा, और सारे कर्जे जो हैं ये तसीह की मंजिल में होंगे। और अगर तरका में कसूर हो, यानी 1.25, 1.5, 1.25, तो तरका को आप फैला देंगे और मसला दोनों को फैला देंगे, यानी तरका और तसीह दोनों को कसर की जिन्स से कर देंगे, फिर वही अमल होगा जो हमने तहरीर किया है। मसलन आप जो हमने अभी मिसाल दी बेटियों वाली, जहाँ 6 से मसला बना है और 7 तरका है, तो 7 तरका के बाद आप 7.5 मान लीजिए। तरका कितना है? 7.5। तो अब तरके में क्या हुआ? कसर हुआ, और कसर क्या है? निस्फ है। 7.5 में 1 का आधा निस्फ है ना कसर। तो अब कसर के मुताबिक ये तरका को आप फैला देंगे, गोया के यहाँ पर 7 के अंदर 14 निस्फ निकले और 1 निस्फ पहले से है, तो 15 हो गया। अब आपने मसले की तसीह 6 से की है, तो अब 6 में 12 निस्फ बन गए, तो तसीह कितनी हो गई? 12। तो अब आपको उसूल के मुताबिक मसला कैसे बनाना है कि आप तसीह को मानेंगे 12, फैला दिया आपने तरका में जो कसर है उसके मुताबिक, क्योंकि कसर निस्फ है। और इस तरह से जब तोड़ेंगे आप 6 को, तो 12 निस्फ हासिल होंगे आपको, तो 12 तसीह हो गई। और 7.5 में से कसर की मकदार जब 7 को आप तोड़ेंगे तो 14 निस्फ हासिल होंगे। तो फैला देंगे आप 7.5 तरका को कितना कर देंगे? 15, और 6 तरका को कर देंगे 12। अब 12 और 15 के दरमियान निस्बत देखेंगे, ये तवाफुक की निस्बत है। तो अब यहाँ पर हर फर्द को या हर फरीक को जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को आप तरका के वक्त में ज़रब दे देंगे, और फिर उसके बाद तसीह पर तकसीम कर देंगे। हासिल किस्मत जो आएगा वो उस वारिस या फरीक का हिस्सा होगा। लेकिन चूंकि एक हिस्से में 1 निस्फ है, तो मसलन अगर किसी को 6 हिस्सा मिलता है तो कितना माना जाएगा? 3 माना जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 निस्फ हिस्सा हुआ उसका, तो 3 माना जाएगा। इसी तरह से बाकी सारी मिसालें बनेंगी।